Hello and welcome back guys to another video to the Ayush PTE Elixir channel. In today's video I'm going to tell you about the most important tips and tricks for write from dictations कि आप write from dictations जिसके अंदर आपके words पूरे नहीं आते, कई बार S या ES की गलती रह जाती है, ED DED की गलती रह जाती है, prepositions मिस हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं and how you can get your achievable score in your write from dictations. So kindly stay tuned in this video till the end because in the end मैं आपको एक ग्रामर का जो ट्रिक होगा, ग्रामर के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर जो हेल्प करती है आपको वो शेयर करने वाला हूँ. So please do not forget to subscribe to this channel, share this video with your mates and also like the video. Thank you and enjoy the part. So very first of all we should be knowing कि हमें पता होना चाहिए कि write from dictations क्या होती हैं. देखिए एक आपको सेंटेंस सुनाया जाता है in which you listen to a sentence and type the sentence exactly as in the box given below and basically 3 to 5 dictations like come in the exam. And if I talk about the marking criteria, one word is substituted for only 1 mark. Like एक नंबर मिलता है आपको एक वर्ड के लिए और वो भी करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए. कैपिटल या शॉर्ट्स जो आपकी स्पेलिंग है उसके अंदर मायने रखती हैं. सो मेक श्योर दैट आप डिक्टेशंस के अंदर जितने ज़्यादा मार्क्स हो सकें उतने लीजिए बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड मार्किंग. लाइक दे हैव द इंटीग्रेटेड मार्किंग क्राइटेरिया फॉर लाइक दे गिव यू द मार्क्स इन योर राइटिंग सेक्शन एंड एज वेल एज द लिसनिंग सेक्शन जिसमें आपको सुनकर टाइप करना है तो ऑब्वियसली लिसनिंग एंड राइटिंग इसके अंदर आती है. एंड हाउ मेनी मार्क्स आर गिवन टू योर राइटिंग सेक्शन? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 marks in the writing section. Guys, 19 to 25 marks are given to your listening section. So if you have any doubts, मतलब जब आप इस वीडियो को सुनेंगे आपके पास कुछ strategies होंगी that I'll be letting you know. So kindly make sure that you have your notebook and the pen with you. अगर आपको कोई भी चीज़ नोट करनी पड़ती है तो kindly note that down and please do not hesitate to ask me anything. You have the given number below, like you can call on that number and comment section में भी आप comment करके पूछ सकते हैं. So guys, very first technique that you can use, it's your visualization in which you are going to listen to a sentence, understand it and just type it in your box or whatever the paper you have. What I suggest is कि मैं like directly type करने की कोशिश करता हूँ box के अंदर because that saves my time as well. Same goes for my listening fill in the blanks. I never just write them on the paper. मैं कभी भी पेपर पर या laminated sheets पर नहीं लिखूंगा उसको. मैं suggest करता हूँ direct type करने की कोशिश कीजिए so that you can get some time for your dictations. At least 3 dictations के लिए 5 मिनट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास. तो पहली टेक्निक में जो मैं बता रहा हूँ विजुअलाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए. सपोज कीजिए मैं अगर आपके सामने रसगुल्ला या गुलाब जामुन बोलता हूँ, इट मीन्स लाइक आपके दिमाग में एक इमेज बनने वाली है. सो दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन. मतलब जो भी सेंटेंस है आप ट्राई कीजिए उसको अंडरस्टैंड करने की. ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट. लाइक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट then comes your second technique that I'll be explaining you now, in which you have to just type the initial letters of that sentence, right? Professor Smith will be late for today's lecture, so you should be writing Professor का P, Smith का S, Will का W, B का B, late का L, today's lecture means TL. So that you can get some idea because let me tell you, if you go for repeat sentences वहाँ पे लिखने वाली टेक्निक शायद सबके लिए काम ना करे बिकॉज एक तो फास्ट होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए. सेकेंड ऑफ ऑल कई बार हम वर्ड्स को भूल सकते हैं और वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता. इन केस ऑफ डिक्टेशंस इफ आई टेल यू, डिक्टेशंस में आपके पास एटलीस्ट 1 मिनट है तो अगर आपने टी पी कोई वर्ड लिखा है तो एटलीस्ट आपको वहाँ से अंदाज़ा लग सकता है एंड यू कैन बाय योर सेंसेस मेक दैट सेंटेंस. सो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइज. इफ यू कैन नॉट विजुअलाइज देन ट्राई टू टाइप द इनिशियल लेटर्स ऑफ दैट sentence, so that may help you as well. And one more thing that I would like to tell you that कि मैंने कई trainers को देखा है basically what they say is especially PTE के अंदर like कि PTE के अंदर grammar का use नहीं होता. सो डियर आई डोंट थिंक सो. मैं किसी को लाइक यहाँ पे अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ किसी के, बट लेट मी टेल यू कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नो डाउट, बट वो लैंग्वेज सिर्फ काम करती है यहाँ पर जो नेटिव स्पीकर्स हैं, बट वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स. तो दो ही तरीके होते हैं इंग्लिश को सीखने के, आइदर इट्स योर एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इट्स योर काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड द रूल्स. तो वो रूल्स ग्रामर के ही होते हैं. लेट मी टेल यू, रीडिंग हो, राइटिंग हो आपकी, चाहे स्पीकिंग हो, स्पीकिंग में नहीं कह सकते, इतना यूज़ नहीं होता ग्रामर का, बट वहाँ भी आप गलत ग्रामर नहीं बोल
बोल सकते। सो ओवर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, जो एक राइटिंग का पार्ट है जिसके अंदर आपकी ग्रामर की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है गाइस। तो उसके लिए आपको जस्ट अपने ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करने होने चाहिए, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, वहां से आप उन रूल्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन जस्ट लर्न देम सो दैट कैन हेल्प यू एनीवेयर जहां पर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है। मतलब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होना, एस या ई एस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, आईएनजी कहाँ आना चाहिए या कहाँ नहीं आना चाहिए, वो सभी उसके अंदर एक्सप्लेन हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको वो ना समझ आए तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल मी एज वेल, आई टोल्ड यू अर्लियर, और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, राइट। सो द थर्ड टेक्निक दैट आई यूज, इट्स माई ग्रामर टेक्निक, जिसके अंदर मैं पहली दोनों टेक्निक्स को मिक्स करता हूँ, लाइक विजुअलाइजेशन एंड द इनिशियल लेटर टेक्निक। जब मैंने इनिशियल लेटर्स लिखे उसके अगर मुझे कोई वर्ड नहीं नजर आ रहा है, जैसे प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टुडेज लेक्चर, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल बिकॉज इट्स मच ईजियर टू एक्सप्लेन। सो प्रोफेसर समझ आया, पी से स्मिथ समझ आ गया, विल समझ आ गया, बट आपको बी से आप भूल गए या फिर एल से भूल गए, तो आप एटलीस्ट कुछ और रिप्लेस कर दीजिए रेदर देन नोट टाइपिंग, लेट मी टेल यू। सो अगर आप टाइप नहीं करते तो गाइस ध्यान रखिएगा कि आपको वो वर्ड समझ ही नहीं आएगा, मतलब आप लिखकर नहीं आ रहे हैं, और अगर आप लिखकर नहीं आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट इट्स बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग, मतलब अगर आपने विल के साथ बी या एल लिखा है तो विल बी लीविंग लिख दीजिए। देखिए बी के बाद आपको याद रखना पड़ेगा, बट वहाँ थर्ड फॉर्म आती है या फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी वाली, तो वो आपको पता होने चाहिए, जो शायद आप लास्ट के रूल्स में जाकर पढ़ सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको ना आए वो वर्ड तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, डू नॉट लीव इट ब्लैंक। Try to either like make a sentence or just make a sense of that sentence. मतलब AI artificial intelligence है या उस चीज को समझ सके, because इसके अंदर कंप्यूटर ब्रेन या हार्ट नहीं होता, ये इस चीज को नहीं समझ सकता कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। बट अगर आपने लिख दिया तो इसकी एक सर्टेन लिमिट्स होती हैं AI की, जिसके अकॉर्डिंग वो आपके डेटा को पिक करता है। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर PTE हो, चाहे आपकी IELTS हो, TOEFL हो, GRE हो, दे ऑल आर बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड इंग्लिश इज बेस्ड ऑन ग्रामर। एटलीस्ट ये आपकी ग्रामर को समझ लेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ट्राई कीजिए, अपने ग्रामर को गलत मत कीजिए, जो आपको वर्ड्स आए हैं ट्राई टू मेक देम एज अ सेंटेंस। एंड लास्टली आई कैन टेल यू दैट अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आया, सपोज कीजिए, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको डिक्टेशन सुनी है। देखिए वैसे तो लिसनिंग इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपका ध्यान नहीं है तो याद रखिएगा कि उसका कुछ नहीं जाएगा और आपका कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको अगर नहीं आया स्टिल आप लिख कर आइए, जैसे आप रिपीट सेंटेंसेस में करते हैं या आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपके जो ट्रेनर्स हैं मे बी वो आपको कहते हो कि कुछ भी बोल कर आइए, तो कुछ भी तो खैर नहीं बोलना होता, मैं उसके लिए आपको एक अलग से ट्रिक और वीडियो बनाकर दूंगा प्रॉपर। बट लेट मी टेल यू, डिक्टेशंस के अंदर आपको डोंट लीव इट ब्लैंक, डू एनीथिंग दैट यू हैव, लाइक आइदर इट इज योर इज, टू, एम, ऑन, फॉर, शायद कोई वर्ड उठा ले, द आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि एक वर्ड का एक नंबर मिल रहा है एंड इट मीन्स दैट अगर दो आर्टिकल्स आते हैं तो 2 नंबर डन है आपके। आर्टिकल्स के साथ प्रेपोजिशंस आ गई उसमें और आपके सेंटेंस की सेंस बन जाती है, तो कंप्यूटर का एल्गोरिथम आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स देना स्टार्ट करता है आपकी लिसनिंग स्किल्स के ऊपर, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, आपकी फ्लुएंसी के ऊपर एंड आपकी ग्रामर स्किल्स के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ना कि कंटेंट के ऊपर। देखिए कंटेंट सबका अलग अलग हो सकता है, सबको समराइज स्पोकन टेक्स्ट में सेम डेटा नहीं समझ आएगा, बट जिसने लिखा है उसने कैसा लिखा है वो मैटर करता है। सेम चीज हेयर, लाइक अगर आप डिक्टेशंस कर रहे हैं तो डिक्टेशंस में आई टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट टेक्निक, रिवाइज करते हैं तो विजुअलाइजेशन जो बेस्ट टेक्निक है। सेकंड वन इट्स योर इनिशियल लेटर टेक्निक, द थर्ड वन इट्स योर डोंट लीव एनी स्पेस, जस्ट फिल द ब्लैंक्स। 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, 4 के बाद आईएनजी नजर आ रहा है, एंड द लास्ट टेक्निक दैट आई एम टेलिंग यू इज टू नॉट लीव योर डिक्टेशंस जस्ट लाइक दैट, जस्ट write anything and get some marks out of that. And one more thing that I would like to tell you, it's कि आपको initial letter capital रखना होता है और लास्ट में full stop होना चाहिए। अगर आपके ये चीज़ पूरी नहीं होती तो शायद उसमें नंबर नहीं मिलते आपको। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ एडिशनल कैपिटल लेटर्स में जो आने वाली है, दे आर योर प्रॉपर नाउन्स लाइक मंडे, ट्यूसडे, वीक नेम्स, यू कैन से वीकडेज के जो नेम्स होते हैं, मंथ के नेम होते हैं, और कभी शायद आपके पास लाइक प्रॉपर नाउन्स में किसी पर्सन का नेम आ सकता है, आएगा नहीं, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट अगर आए तो उसको भी कैपिटल में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन या न्यूटन, समथिंग लाइक दैट। So these all are the tricks that I would like about to tell you about dictations. So kindly remind all these tricks and tips. Do not
forget these tricks, try to practice as much as you can, and if you need any kind of assistance, अगर आपको ऑनलाइन या क्लासेस चाहिए तो आयुष PT Elixir is always with you since the last 7 years. I have been training PT. YouTube पर चैनल हमने अभी बनाया है जस्ट रुझान को देखते हुए, तो I just want everyone कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्राई कीजिए अपनी और अपने फ्रेंड्स की मदद करने की, कि शायद उनकी ज़िंदगी बन जाए। जो लोग 5 या 6 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड और वो हिम्मत हार चुके हैं, आई एम देयर टू हेल्प देम। आई कैन गारंटी देम कि आपका 15 दिन के अंदर स्कोर कैसे आ सकता है। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगैन and share this video with your mates. So here are some tips that you can apply to your reading blanks as well.